Amit Bhardwaj also is joining me from a different location, a different village where Rahul Gandhi had come. Amit, what is the general sense right now that you pick up? Is there a certain relief that at least Rahul Gandhi has come and met them? There is, of course, while a political showdown over this. But importantly, what are these eyewitnesses saying, families that have been left behind? What is the general sentiment that you're picking from them? Pooja, the family that I'm sitting with is of Manju Devi. And let me tell you, I've been holding conversation with them since morning, and no political leader, no assurance, no financial package is actually going to fill the dearth of the loved ones who have gone. And the trauma of this family is actually unbearable. I'm joined by Chote Lal, whose wife Manju Devi passed away in that stampede, and he saw his wife die, get injured and eventually succumb to those injuries, and his 6-year-old son. And, come what may, we can think of it, but for years they were waiting for their son. They had 4 daughters, and that was one of the reasons why they actually got more attached to this so-called godman, Narayan Sakar Hari. I'm actually cutting to Chote Lal to share as to what he saw that day, and he's been telling me, about the assurances that has been given by the political leaders, including Rahul Gandhi. But his pain is something that we need to understand right now. छोटे जी, आप उस दिन वहाँ पे थे, आप लगातार मुझे वीडियो भी दिखा रहे थे इस वक्त इंस्टाग्राम पे, आपके बेटी के साथ जो वीडियो था, तो आप लोगों का जो लगाव हुआ ये साकार हरि के साथ, नारायण साकार हरि के साथ, क्यों हुआ, क्या कारण था? गांव के कुछ लोग जाते मुंह पे बेटी लगातार हो गई, तो कहते कि भैया तुम चल करो, तुम्हारे ऐसा का बेटा है, तो मैंने की भैया चलो चलते हैं, तो चलते रहे भैया। बाकी बाद में फिर हमारी 6 साल का बेटा है और 5-6 साल, हमें 6-7 साल वहीं जाते जाते फिर मेरी वाइफ के जहाँ गांठ बन गई एक, जहाँ गले पे, तो कृष्णा हॉस्पिटल में मैंने उसका चेकअप कराया। 1700 रुपये हम चेकअप भया उनका, तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कह दी कि तो आपको करवानी पड़ेगी, इसका कोई दवा का इलाज नहीं है, तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मैं उनकी चलो सत्संग में जाने थे, ऐसे का कट जाए, तो भैया मैं चलता रहा, सत्संग में जाता रहा, मैंने ऐसे का बात कट जाए, मगर मेरी वाइफ की गांठ नहीं गई, तो मुझे तो कुछ लाभ खास ऐसा दिखा नहीं। वो तो अब तो लाभ इतना मिल गया कि पूरी जिंदगी ना भूलूंगा। सत्संग में आकर पूरा लाभ मिल गया, मेरे बेटा मेरी वाइफ की इतना बड़ा लाभ मिला, भूल सकता हूँ मैं? कभी नहीं भूल सकता। आप अपने भाई के साथ फोन पे वीडियो बनाती थी रोज? जंगल में लेके पापा से फोन ले लेता, कहते बीबी चल वीडियो मोबाइल इन पर मिल जाने के दोनों यानी वीडियो बनाने लग जाते हैं। अपने घर पे आकर छोड़ दूं मैं तो वीडियो बनाते हैं, अपनी गेहूं काटे गेहूं की मेरी वीडियो, और घर पे दोनों उनकी। अभी ये तो 2-3 दिन, जैसे मंगलवार गए हम, सुबह में इतवार सोमवार में ही बनाई है वीडियो। ये जो आप मुझे दिखा रहे थे, तुम्हें दिखा रहा हूँ 2 वीडियो। So Pooja, that's Palak. She is daughter of Chote Raj and elder sister of the boy who died in that stampede. And I've seen those videos. It can certainly move anyone sitting anywhere in the world. These very young brother and sister making those videos. And when she was watching those videos, she had actually started to cry. She was unconsolable. So all that happened, and there is the grandmother. Just tell me again, can you just tell us, for the viewer watching, who all passed away from this family? Because it's so heartbreaking to watch this young girl die. Who all precisely have not returned from that satsang from this family? Pooja, in this particular case, what happened was Manju Devi is nearly 35-year-old, and she used to go to the satsang continuously. She would not miss these satsangs, and this time around, her son, 5-year-old son, 6-year-old son was also there. And in this stampede, Manju Devi died, as well as that 6-year-old son, because of whom they had gotten attached to Narayan Sakar Hari, because of whom they were waiting. The family, Chote Lal had 4 daughters, and he, like many of the families in this country, he was wanting to have a son.
And now he's saying that we went to the satsang, and this is the possibly the biggest Ashirwad gift that, and even now as we speak, as I was telling you as well, he's watching those videos on Instagram that was posted, and it's essentially of his son who is no more, and Palak, the elder daughter of Manju Devi, who's no more there, and Chote Raj is continuously looking at these videos on Instagram. Many of these videos have the audio of that Narayan Sakar Hari. छोटे राज जी, बहुत सारे वीडियोस में आपके नारायण साकार हरि का भजन वजन लगा के इन लोगों ने पोस्ट किया, तो क्या बच्चों के अंदर भी वो एक भक्ति भावना आ गई थी? हाँ, भक्ति भावना जाते सोचने लगे जे भी हम मुझे सोच लेगा अच्छे संस्कार पर हमने भी वहां आके भैया जिस सीखो का हम किसी का बेईमानी ना करें, कोई चोरी ना करें, हम किसी का ईमानदारी से अपना मेहनत रोजगार करें, किसी से लड़ाई ना करें, अहंकार ना करें। मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, पूरे गांव में आप ट्राई कर सकते हैं। मैं कोई अहंकार तो मैंने सत्संग में जाने के बाद में खो दिया था, मैं किसी को नहीं बुरा समझता। लग रहा है कि अंधविश्वास में आप लोग पड़े हुए। अब तो भैया अंधविश्वास ही समझ लो, मगर हम अंधविश्वास में इतने है कि हम क्या घर में का ना तो कोई गंगा जी भंगा जी नहाने जाते हैं हम ज्यादातर, ना हम काय की पूजा पाठ करते, और कुछ होता भी नहीं है। गहराई से सोच होता जो अपने माँ बाप की पूजा कर लेंगे, सेवा कर लेंगे, उससे ज्यादा कोई बड़ी पूजा नहीं है। हम तो जो शिक्षा पा रहे हैं, हम तो अपनी माँ को जो करते अपनी माँ के साथ में करते हैं हम। So I'll, if you allow me, I'll also move to छोटे राज मदर। आप भी सत्संग में जाती थी? जाते थे बेटा, ये सुनते थे कि वो चक्कर चला रहे हैं, वो वहाँ कृपा है गई, तो हमने भी सोचा कि हम भी दुखी हैं, कुछ हमें भी मिलेगा। हम भी अपनी अर्जी लगाते थे जाके। क्या कृपा मिली आपको? अब यही कृपा मिलेगी कि नकदेर में बहू और नाती फालतू के धक्का मुक्की में ये भी पता नहीं लगा कैसे दम निकला होगा, कैसे नहीं निकला होगा, यही मिलेगा सबसे ज्यादा। हमारे अब जाएंगे नहीं आखिरी में छोटे राज आपसे पूछना चाहता हूँ, जब ये घटना हो रही थी तो आपने बचाने की कोशिश की, क्या स्थिति बनी? भैया जब गाड़ी उनकी लेकर के गई का सत्संग समापन के बाद में, तो मैं मेन रोड पे, मेन गेट के सामने बीच रोड पे था मैं, तो जब एकदम रेला पर होना तो उस रेला में मैं भी बिछाऊं, मेरे देखो जो कार पर पता ना काला हुआ जहाँ आपको भी चोट? हाँ, आप गिर गए थे? आप न गिरा नहीं, खड़ा गई। जैसे खड़े रहने पे ये गाड़ी खड़ी आगे, तो गाड़ी में ऐसा करके मेरा पेट बिछा, तो मेरी आवाज लग रही, मैंने धक्का चो मारे, तब 60 में करके बच के मैं मोटरसाइकिल स्टैंड पे चल रहा हूँ। अब मैं मोटरसाइकिल हालू जब तक बच्चा मेरे आ जाएंगे, तो वहां में देखता मोटरसाइकिल स्टैंड पे कम से कम 1 घंटा लग गया मोटरसाइकिल स्टैंड निकालने में, मुझे ऊपर रोड पे हूँ। मोटरसाइकिल निकालने के बाद में फिर मैंने देखा, मैंने मेरे बीवी और बच्चा मेरे दोनों में कोई नहीं दिख रहा, तो भैया जब मैं रोड पर जाकर मैंने अपनी बाइक खड़ी करी है, भैया ने देखा, मैंने भैया बाइक खड़ी है मेरी, मैं अपनी बीवी को देख लाऊं। जब वहां से जब मैं चलाऊं पंडाल की तरफ, तो रोड देखते जा रहा हूँ, तो मुझे कहीं नहीं दिखी है। जब वहां देखा तो वहां पर जब वहां पर मेरी चप्पल जूता नरी और भर के वहां पर एक साइड में करी जा रही, यहाँ मैंने यहाँ का आया हुआ, तो वहाँ के कुछ लोग बोल रहे कि यहाँ बहुत लाश है। वहाँ के बाद में फिर मैंने हमारी गांव की एक भाभी बैठी वहाँ, मैंने भाभी तुमने हमारी मंजू को मेरे पीके को देखो, तो बोली छोटे मैंने ना देखो। तो पहनते ही मैंने पांडाल के सांड के पास की मैंने सीधे लगा ली। सांड के पास भैया जब मैं पहुंचा तो मेरा बेटा सांड वारन के पास में बिल्कुल कुछ नहीं था, बिल्कुल पड़ा था मेरा बेटा। तो मैंने कि भैया जी तो मेरा बेटा का बोले भैया इसको हम ले गए, मेरा नहीं बचा पाए। मैंने भैया की मम्मी कहाँ है, तो भैया पता नहीं देख लो। मैंने कि अगर होती तो मैंने मेरे बेटा के पास होती, मैंने कि अगर होती मेरे बेटा के पास बैठी रो रही होती, मेरी बहू ला रही थी, कैसे नहीं आए। एक पुलिस वाले भैया आ गए, पुलिस लेके फिर उनने कहा बेटे को उठा मेरे साथ चलो हॉस्पिटल चलते हैं। फिर उनने अपना ऊंचा था मेरे बेटा के ऊपर डाल के लगा हॉस्पिटल, बच्चा को फिर उनने दिखाया, ऑक्सीजन लगवाई। मैंने बाम है ही ना कुछ उन्होंने करवाई। तो मीडिया वाले बहुत भैया आते, वो भी उस सारे के बच्चे के लिए कब दिखाओ इसमें सांस है, मरवान कुछ ना। Amit, can you also ask the family if they are comfortable? What triggered possibly according to him? What led to the stampede? ज्यादा घबराहट मेरे आने लगी, मैंने यही होती Pooja, these stories are actually heartbreaking. I'll try to ask that question as well. They are actually in completely unconsolable position right now. छोटे राज जी, मैं एक बस आपसे जानकारी एक बार और समझना चाहता हूँ कि आप लोग उस दिन उतनी भीड़ थी वहाँ देख रहे होंगे, ये भगदड़ क्यों शुरू हुई, कुछ पता चल पाया? भगदड़ में सामने भाई मैं बता रहा हूँ, जैसे उस समापन के बाद में जब उनकी गाड़ी जाती नहीं है तो एकदम जनता उनके
बाहर को लेकर आती है मेन गेट पे। वहाँ कोई बैरिकेड नहीं था बिल्कुल मेन गेट पर, छोड़ दिया था। हाँ बैरिकेड जैसे होते हैं पुलिस के सरकारी बैरिकेड बने होते ना लोहे के, वो कोई चीज नहीं थी वहाँ। और जैसे उनकी गाड़ी गई ना तो सेवादार भी उनके पीछे भागने लगे उनके निकालने के लिए। तो एकदम पब्लिक लेकर के आई ना माथे तो मेन गेट के सामने। तो मुझे पता नहीं कि मेरे बच्चे भी जाके संग आ रहे हैं, वरना वैसे मैं समझा के भेजता हूँ। तुम अलग बैठी हो साइड में। आप भी दौड़े थे उस भीड़ के साथ गाड़ी के पास जाने के लिए? दौड़ा नहीं था, मैं तो खाली बचने के लिए जैसे साइड में बना हूँ तो मैं साइड पे लेकर गया हूँ। तो जब मेरे सामने तो जब तक कोई गिरा नहीं दिखा, अगर दौड़ता गाड़ी के पीछे तो मैं तो वो हादसा को देख लेता। अगर मैं सामने जा रहा हूँ तो मैं पीछे को लौट के आ गया तो मैं अपनी बाइक निकालने को साइड पे चला गया। कोई पुलिस वाले भीड़ को रोकने के लिए, सेवादार भीड़ को रोकने के लिए कोई नहीं? मर के आते हैं वहाँ कुछ लोग, मगर इतनी भीड़ को कौन रोक सके जब कितने लोग वहाँ गिरे हैं। अगर 10 पुलिस वाले होंगे या 20 सेवादार होंगे वो इतनी भीड़ को ना रोक पाएंगे भैया। अगर बैरिकेड लगे होते वहाँ इतना हादसा ना होता। बैरिकेड नहीं था इसलिए? कोई नहीं था वहाँ, कोई बैरिकेड नहीं था। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? राहुल गांधी से भी बात हुई, क्या गिरफ्तारी हो नारायण साकार हरि की, या इसमें आप मानते हैं कि जो प्रशासन है उसकी गलती है? भैया गुनहगार को सजा मिले। सत्संग तो बहुत करें मगर ऐसे धक्का मुक्की हमने कहीं ना देखे जहाँ में पता ना कौन की का हो कैसे का हो। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। चाहे गिरफ्तारी कर लो चाहे फांसी कर लो, मेरे बीवी बच्चा तो लौट के आने वाले हैं ना, और ना मैं कहीं जाने वाला हूँ। मेरा सब रिश्तों खत्म है, मेरा कोई ना सत्संग है ना कुछ नहीं है।